Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड फॉर मॉनिटरिंग स्ट्रीट वेंडर्स ग्रीवियंस रिड्रेसल बाय हरदीप सिंह पुरी। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इनकी कोई भी दिक्कत आती है, इनकी कोई भी ग्रीवियंस है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के द्वारा एक सेमिनार हुआ। और ये सेमिनार कहाँ पर हुआ था? इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। इस सेमिनार के द्वारा ही के ड्यूरिंग ही ये पैसा डैशबोर्ड पोर्टल एंड पीएम स्वनिधि पोर्टल, इन दोनों को यहाँ पे वापस से लॉन्च किया गया, इनको इनॉग्रेट किया गया। अगर यहाँ मैं बात करूँ, दोनों सही है। बात करूँ पैसा पोर्टल की, तो याद रखेंगे ये है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस डैशबोर्ड। और पीएम स्वनिधि क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि मिशन। ये मॉनिटर करेगा। ये दोनों पोर्टल बेसिकली आपके हेल्प करेंगे कि जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी लाइफ को और बेटर बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि इनका द्वारा इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, तो इनको हेल्प करने के लिए और इनको ग्रो कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। अगर बात करें पीएम स्वनिधि स्कीम की, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा अपने बिजनेस को रिज्यूम करने में कोविड-19 के बाद जो भी दिक्कत आ रही है उसमें इनकी हेल्प की जा सके। राइट, इवन यहाँ पे सब्सिडाइज लोन्स भी प्रोवाइड कराने की बात की गई। पैसा पोर्टल की बात करें, 26 नवंबर 2018 में ये लॉन्च किया गया था। एंड इसका किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इलाहाबाद बैंक। ये एक सेंट्रलाइज्ड हब है फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द बैंक लोन्स टू द बेनिफिशियरीज अंडर दिस डे NULM। ठीक, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं फिर। नेम द इंडियाज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट इन मध्य प्रदेश। तो जैसे हम जानते हैं स्ट्रीट फूड का ना आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया। आप इवन इंस्टाग्राम वगैरह इन पे देखते हैं तो जो फूड रिलेटेड रील्स होती है ना, शॉर्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। करेक्ट, इवन लोगों को आजकल चटपटा खाने का, और इंडिया स्ट्रीट फूड आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है ग्लोबली। तो सिमिलरली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और जो भी लोग महाकालेश्वर टेम्पल जाएंगे, राइट, उनको वहाँ पे खाने के लिए भी चाहिए, राइट, उन डिवोटीज को अपना प्रॉपर डाइनिंग भी करनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? उज्जैन में, राइट, नीलकंठ वन उज्जैन मध्य प्रदेश में इंडिया की पहली हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है परसाधाम। राइट, परसाधाम,
करेक्ट। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये प्रासाधाम लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया की पहली हेल्दी एंड हाइजीनिक स्ट्रीट फूड रहेगी, नीलकंठ वन में, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव भी प्रेजेंट थे। एंड इस प्रासाधाम में अ टोटल ऑफ 17 शॉप्स रहेगी, स्प्रेड अक्रॉस 939 स्क्वायर मीटर्स एंड ऑफर्स कन्वीनियंट एंड कल्चरली रिच डाइनिंग ऑप्शंस फॉर डिवोटीज ऑफ महाकालेश्वर टेम्पल। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यहाँ पर एक मनहित एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। मनहित एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कि एक इनिशिएटिव है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखेंगे, एक बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम रहेगा द डार्ट बुक। तीसरी चीज याद रखेंगे, यहाँ पर एक फूड वैन लॉन्च की गई फॉर टेस्टिंग, राइट, जो का था FSW, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। ये क्या है, एक वैन है फॉर फूड टेस्टिंग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हु मेड इट मैंडेटरी फॉर M2M, मशीन टू मशीन। WPN है वायरलेस पैन एरिया नेटवर्क और WLAN है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ताकि इनकी रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया जा सके, मैंडेटरी किया जा सके, ताकि प्रॉपर एक डाटाबेस बन सके, राइट। कौन कौन इस फील्ड में ऑपरेटर हैं उसके बारे में जानकारी आ सके। इन प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने के लिए सभी एंटिटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप्स, LLPs, इंस्टीट्यूशंस, अंडरटेकिंग, सोसाइटीज जो भी होंगी, उन सबको यहाँ पे इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर एक गाइडेंस, एक प्रॉपर डाटाबेस बन सके इन दिस सेक्टर, राइट। और इसको भी फिर रेगुलेट किया जा सके अच्छे से। जो इन कंपाइलेंस को फॉलो नहीं करेगा, जो इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड उनको फिर आगे फर्दर इस फील्ड में काम करने से रोक दिया जाएगा जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, राइट। ये क्या है, बेसिकली आपके इंटरनेट ऑपरेटर्स, राइट। बेसिकली इन शॉर्ट टर्म बोले तो आपके इंटरनेट ऑपरेटर्स को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी करा गया है। फिर याद रखेंगे TRAI क्या है, आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये स्टैब्लिश कब की गई थी, ट्राई 1997 में, हेडक्वार्टर रहेगा इसका न्यू दिल्ली। तो DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया फॉर द रजिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है FAO, यूनाइटेड नेशन का आर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया दिसंबर 2023 का, जो बताया स्टूड एट 10.1% बिलो द 2022 लेवल्स। अगर हम देखें 2022 के लेवल्स, तो यहाँ पर आपको देखेंगे फूड प्राइस इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में काफ़ी ज़्यादा आपके प्राइजेस थे, राइट। और हम जानते हैं लास्ट ईयर आपकी इन्फ्लेशन भी बहुत ही ज़्यादा थी, अब तो इन्फ्लेशन कम हो गई है, करेक्ट। तो ये वही दर्शाता है। एक बार इन पॉज कर लो वीडियो को और इन पॉइंट्स को देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड अ बायलैटरल हज एग्रीमेंट 2024 इन जेडा। तो अभी रिसेंटली इंडिया एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच में एक बायलैटरल हज एग्रीमेंट साइन हुआ है 2024 के लिए इन जेडा। एंड इंडिया से यहाँ पे 1,75,000 पिलग्रिम्स जाएंगे, दैट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड फॉर हज 2024। एंड जिसमें से 1,40,000 सीट्स जो है रिजर्व्ड है फॉर द पिलग्रिम्स टू प्रोसीड थ्रू हज कमिटी, और कुछ 35,000 ऐसे हैं जो कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, तो बायलैटरल हज एग्रीमेंट 2024 के लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील साइन हुई इन जेडा, ये होगा, राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। तो IRDAI ने अभी ईज कर दिया नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंश्योरेंस कंपनी। इससे क्या होगा, बेसिक एम क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की यहाँ पे बात की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई, करेक्ट। एंड जो भी इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं उनके लिए और ईजी बनाने का यहाँ पे इन द इन्वेस्टमेंट काम किया गया, करेक्ट। यहाँ पे IRDAI ने रिमूव कर दिया रिक्वायरमेंट ऑफ केस टू केस अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स NBFCs बाय इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक। यहीं पर अगर हम देखें कुछ क्राइटेरिया इनको मेट करना पड़ेगा बिफोर द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस। अगर देखें तो ये जो IDFC NBFC है ना, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए RBI से, AA की रेटिंग होनी चाहिए बाय एनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड इनको SEBI के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। 5 साल का मिनिमम टेन्योर रहेगा इन्वेस्टमेंट का, राइट। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं IDF क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, करेक्ट। ये अगर हम इसको एज अ ट्रस्ट डेवलप करेंगे तो ये एक म्यूचुअल फंड का काम करेगा, एंड एज अ कंपनी डेवलप करेंगे तो यहाँ पर एक NBFC का काम करेगा सब्जेक्ट टू RBI रेगुलेशन, और म्यूचुअल फंड होगा तो वो SEBI के रेगुलेशन के अंडर आ जाएगा, ठीक है। IRDAI की बात करें तो चेयरपर्सन देबाशीष पांडा, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना, एंड इसको 1999 में इस्टेब्लिश
करा गया था। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए IRDAI के द्वारा ये स्टेप्स लिए गए एंड इससे IDF NBFC बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगा ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी $5 बिलियन के ड्यूल ट्रेंच 3 ईयर एंड 5 ईयर बॉन्ड्स को सेल किया? अगर 3 ईयर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे $3 बिलियन रेज किए गए। 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर $2 बिलियन रेज करे। तो टोटल कितना अमाउंट रेज किया गया? $5 बिलियन रेज किया गया। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेज किया $5 बिलियन ड्यूल ट्रांच 3 ईयर बॉन्ड एंड 10 ईयर बॉन्ड ताकि डेवलपमेंट इन द रीजन को प्रमोट किया जा सके। राइट, एशियन पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये अमाउंट रेज करा गया। नेक्स्ट, आप यहां देख सकते हैं 3 ईयर का जो बॉन्ड था $3 बिलियन का, कूपन रेट, कूपन पेमेंट, प्राइस रेट, ईल्ड उसका, एंड ये 12 जनवरी 2027 को मैच्योर होगा। सिमिलरली 10 ईयर का जो बॉन्ड है वो 12 जनवरी 2034 को मैच्योर होगा। कूपन रेट, कूपन पेमेंट, फ्रीक्वेंसी एंड प्राइस डेट और ईल्ड आप उसका यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी 75th एडिशन ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग नरेटर को जीत लिया है। तो वो है USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा। राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स को जीत लिया है अंडर द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी। ये 2009 से 2017 के बीच में USA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड नरेटर कैटेगरी के अंदर इन्होंने जो नेटफ्लिक्स की इनकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी टाइटल वर्किंग व्हाट डू वी डू ऑल डे द मिडल, उसके लिए इनको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी में 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले ही वन द अवार्ड इन द सेम कैटेगरी इन 2022 फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज आर ग्रेट नेशनल पार्क्स अ वर्ल्ड ऑफ वंडर। ठीक है, मार्क करेंगे 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग नरेटर की कैटेगरी में फॉर्मर US प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने इस अवार्ड को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 5th टर्म। इनका 5th टर्म रहेगा, ये है शेख हसीना। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। शेख हसीना, इनको 5th टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। फिर याद रखेंगे अगर शेख हसीना की बात करें तो इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2009 में। इनको UN चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2015 में। और अब ये 5th टाइम के लिए अपॉइंट की गई है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। राइट, आप इनको यहां पिक्चर में देख सकते हैं, शेख हसीना। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे? रघुराम अय्यर। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। रघुराम अय्यर को अभी रिसेंटली नया CEO अपॉइंट कर लिया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। इससे पहले ये CEO रह चुके हैं ऑफ IPL टीम सच एज राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, और अब इनको यूनानिमसली सिलेक्ट कर लिया गया फॉर द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ IOA बाय नॉमिनेशन कम्युनिटी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा एक फ्यूल सेल स्पेस में टेस्ट किया गया, राइट, कि जो आने वाले हमारे रॉकेट्स होंगे, सैटेलाइट लॉन्चेस होंगी, राइट, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हम ये नया फ्यूल सेल को यूज करेंगे। करेक्ट, तो इसरो के द्वारा ये 100 वॉट का क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम को टेस्ट किया गया इन स्पेस। करेक्ट, टू कलेक्ट डाटा एंड उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। राइट, इसरो की बात करें S सोमनाथ यहाँ के चेयरपर्सन रहेंगे। बेंगलोर कर्नाटका इनका हेडक्वार्टर रहेगा। 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। अभी आदित्य L1 की हमने बात करी थी, ये अपने लैंग्वेज 1 पॉइंट पे पहुंच गया है जो कि हेलो पॉइंट है इनका बेसिकली, एंड ये सन को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इवन अभी ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए ऑन 1 जनवरी इसरो के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर, हम जानते हैं काफ़ी फेमस हैं डेविड वार्नर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ODI एंड टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। मार्क करके चलेंगे। ये कौन कौन सी, अगर मैं पूछूं IPL में कौन कौन सी टीम से खेलते थे तो याद रखेंगे ये IPL में आपका दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे पहले, राइट, अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, और बीच में सनराइजर हैदराबाद के लिए भी ये खेले हैं। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है फिर जर्मनी, इन्होंने यूनाइटेड कप 2024 टाइटल को जीत लिया है। यूनाइटेड कप ये किससे रिलेटेड है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये टेनिस से रिलेटेड है। इसको हार्ड कोर्ट पे खेला गया था, राइट। और जर्मनी की टीम यहाँ पे विजेता रही। इन्होंने किसको हराया फाइनल्स में, इन्होंने पोलैंड को फाइनल्स में हराया। अगर ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, करेक्ट। और यहीं पर अगर मैं देखूँ ये सेकेंड एडिशन था आपका यूनाइटेड कप का। मैन सिंगल कैटेगरी में अलेक्जेंडर जीते जर्मनी से, वीमेन सिंगल कैटेगरी में ईगा स्वातिक पोलैंड से जीती, एंड मिक्स डबल में अलेक्जेंडर एंड लॉरा सिगमेंट जो कि जर्मनी से हैं, इन्होंने यहाँ पे बाजी मार ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्यूट्री। अभी मारियो जगैलो ये ब्राजील के वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल टीम प्लेयर रह चुके हैं एंड कोच हैं, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। ये वो पहली व्यक्ति बने जिन्होंने एज अ प्लेयर भी एज अ मैनेजर भी वर्ल्ड कप को जीता, करेक्ट। एंड इनको फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये हाईएस्ट ऑनर है फीफा के द्वारा, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 में। एंड इनको ओल्ड वुल्फ एज वेल एज द प्रोफेसर के नाम से जानते थे फेमसली इन ब्राजील। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। तो अभी असम के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया क्लीन एयर इनिशिएटिव। इसके अंडर ये क्लीन एयर को प्रमोट करेंगे एंड जो पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स होते हैं ना उसको अवॉइड करके 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे यूज़ करने की बात की जाएगी और इलेक्ट्रिक बाइक्स को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एक तो कनेक्टिविटी बढ़ सके, राइट, लॉजिस्टिक अच्छा हो सके, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सके, क्लीन एयर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है तो नो पॉल्यूशन। इसी के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया वायु, जो कि एक क्लीन एयर मूवमेंट है ताकि इंप्रूव किया जा सके एयर क्वालिटी इन असम सिटीज। तो ये असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव वायु, जो कि एक क्लीन एयर मूवमेंट रहेगा टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ असम सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट। इंडिया ने पहली बार 31 मीटर का यू गाइडर सक्सेसफुली लॉन्च किया, राइट। इन्होंने सक्सेसफुली कास्ट किया 31 मीटर का यू गाइडर, ठीक, गिरडर मार्क करेंगे। पहले 28 मीटर का यू गिरडर्स यूज करते थे, अब 31 मीटर का यू गिरडर यहाँ पे लॉन्च किया गया, राइट। तो मार्क करेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। हमारे हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने रिफ्रेश्ड पैसा पोर्टल एंड पीएम स्वनिधि पोर्टल को लॉन्च किया। देन यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च किया प्रासादाम, ये इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट रहेगी मध्य प्रदेश में। डीओटी ने कंपलसरी कर दिया M2M एंड WPAN एंड WLAN रजिस्ट्रेशन टू ऑल एंटिटीज। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज हुआ, स्टूड एट 10.1% बिलो 2022 लेवल्स। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइंड अ बायलैटरल हज एग्रीमेंट इन 2024 इन जेडा। IRDI ने ईज किया नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंश्योरेंस कंपनीज। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सेल किया $5 बिलियन इन ड्यूल ट्रांच 3-year एंड 10-year बॉन्ड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द रीजन। देन फॉर्मर US प्रेसिडेंट बैराक ओबामा, इन्होंने 75 क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स को जीत लिया इन द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी। 2022 में भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट, शेख हसीना ये 5th टर्म की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं बांग्लादेश की। फॉर्मर IPL ऑफिशियल रघुराम अय्यर, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ IOA। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम स्पेस में ताकि फ्यूचर मिशंस में इनको यूज़ किया जा सके डाटा कलेक्शन के लिए बेसिकली अभी। देन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ODI से एंड टेस्ट क्रिकेट से। जर्मनी ने जीत लिया है यूनाइटेड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग पोलैंड इन द फाइनल्स। देन मारियो जगैलो, ये ब्राज़ील वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल प्लेयर है एंड कोच, इनका रिसेंटली निधन हो गया। वायु, असम ने लॉन्च किया इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस, राइट। इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना किया जाए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एंड बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट, इन्होंने इंडिया का पहला 31 मीटर यू गर्डर को लॉन्च किया, सक्सेसफुली इसको कास्ट किया गया। पहले 28 मीटर का यूज़ करते थे पर यहाँ पे पहली बार 31 मीटर का आपका यू गर्डर्स लॉन्च किया गया है, कास्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे, आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट पे आते हैं फिर इंडियन रेलवेज, इन्होंने एक 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया has 3 MOUs with which organization to facilitate green initiatives। तो ग्रीन इनिशिएटिव्स को, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो यहाँ पर हम एनर्जी को
या फिर जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, वाटर कंजप्शन को हम ठीक से कंज्यूम करें, एंड जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको रिड्यूस कर सकें, इसके लिए ये 3 MOUs थे। तो इंडियन रेलवेज ने CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ ये MOU साइन किए, एंड ये जो 3 MOU है ना ये 2016 से साइन किए गए थे, एंड ऐसा तीसरी बार हो रहा है इन MOUs को यहाँ पे आगे और एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। इनके ये डील को और एक्सटेंड कर दिया गया है, करेक्ट। फिर यहीं पे इंडियन रेलवेज का टारगेट रहे कि हम 2030 तक इंडियन जो नेट जीरो कार्बन एमिशन को इंडियन रेलवे सेक्टर को में अचीव कर सकें, राइट, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। फिर यहीं पे हम देखेंगे CII यहाँ पे इन इंडियन रेलवेज की हेल्प करेगा टू अचीव दिस टारगेट, और टारगेट बेसिकली ये 3 MOUs किस फील्ड में थे अगर फिर से हम देखें, रिड्यूस एनर्जी, वाटर कंजप्शन जो ठीक से होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, एंड लोअरिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। CII की बात करूं, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे यहाँ पर, चंद्राजीत बैनर्जी, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में, एंड 1895 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। इसी के अलावा फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ CEO ऑफ द ईयर कौन बने, CEO ऑफ द ईयर 2023 सैम ऑल्टमैन, टाइम मैगजीन के द्वारा इनको ये डिक्लेयर किया गया। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन कौन रहेंगे, वो है लायनल मेसी, ठीक। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी रिसेंटली त्रिपुरा ने किन को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, उनके टूरिज्म या फिर हम बोलें टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्टेट, तो सौरव गांगुली जी को, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किन के साथ टाई अप करा फॉर फाइनेंसिंग प्रोग्राम, तो वो DBS बैंक है, ठीक है, DBS बैंक। फिर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने अपने आप को रीब्रांड कर लिया, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस से क्या नाम हो गया इनका, ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस से ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस इनका नाम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं IMAC, ये अपग्रेडेड टू नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन हाउ मेनी ईयर्स, तो ऑप्शन दे देता हूं, A ऑप्शन 2 ईयर्स, B ऑप्शन 3 ईयर्स में, C ऑप्शन 4 ईयर्स में, और D ऑप्शन आपके 5 सालों में IMAC आपका किस में अपग्रेड हो जाएगा, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कितने साल में हो जाएगा, तो आने वाले 3 साल में। तो याद रखेंगे इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर जो कि है IMAC, ये अपग्रेड हो जाएगा, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, ये अपग्रेड हो जाएगा नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इनका मेन एम क्या रहेगा कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर यहीं पर हम देखेंगे 15 डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस, 15 डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड 7 मिनिस्ट्रीज यहाँ पर एक साथ आएंगी। फिर इसी के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो NDMA है, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इससे रिलेटेड जो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो हमें नए नए प्रोडक्ट्स की, नए नए वेपन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको भी यहाँ पे भी हम उस सेक्टर को, उस टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी यहाँ पे डेवलप करने का काम करेंगे, राइट। IMAC की अगर मैं बात करूँ, राइट, ये अप्रूव किया गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2012 में, एंड ऑपरेशनल हुआ था 2014 में विद अ कॉस्ट ऑफ 450 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इंडिया प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच % इन 2024 एज पर अंडेसा वेस्प। ये UNDESA वेस्प क्या है, अंडेसा होता है आपका यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इनकी रिपोर्ट आती है वेस्प नाम से। वेस्प क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। इन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी 2024 के लिए वो कितनी रहेगी, 6.2%। वहीं पे अगर 2025 की मैं बात करूं तो GDP ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है 6.6% इंडिया की, राइट। तो अभी 2024 में इंडिया 6.2% से यहाँ पे ग्रो करेगा। अंडेसा का अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो कहां पर रहेगा, न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ, अभी हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, कब ऑब्जर्व किया, 9 दिसंबर को, राइट। ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया हमने, 10 दिसंबर को। इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 11 दिसंबर को।
11 दिसंबर को ही हमने यूनिसेफ डे ऑब्जर्व किया, राइट। फिर इसी के साथ साथ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब ऑब्जर्व किया? 14 दिसंबर को हमने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक्स आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या है? ये एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने रेज किया हाउ मच अमाउंट इन 5 ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड। 5 ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड के तहत अभी वर्ल्ड बैंक के आईबीआरडी आर्म ने, जो कि है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने 5 ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड में कितना अमाउंट रेज किया है फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड वेरियस इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड, राइट। और तो कितना अमाउंट रहेगा? तो ये है 1.5 बिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग। तो 1.5 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे रेज किए गए बाय आईबीआरडी। आईबीआरडी की बात करें तो याद रखेंगे यहाँ पर ये AAA रेटेड है, राइट। आईबीआरडी इन्होंने AAA रेटिंग मेंटेन किया, जिसका मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बॉन्ड रहेगा आपका, राइट। इशू प्राइस देख सकते हैं, इशू यील्ड, डिनोमिनेशन, कूपन रेट और कूपन पेमेंट डेट रहेगी 2 अक्टूबर हर साल। ये बॉन्ड मैच्योर कब होगा? 5 साल का है तो 2 अक्टूबर 2028 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर इसको लिस्ट किया गया है, ठीक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नेक्स्ट आ जाता है एसबीआई। एसबीआई ने रेज किया हाउ मच अमाउंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो एसबीआई ने कितना अमाउंट रेज किया है? तो एसबीआई ने यहाँ पे रेज किया है $250 मिलियन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, राइट। और ये जो बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं ये BBB रेटेड है। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये क्या था? AA रेटेड था, AAA रेटेड था वर्ल्ड बैंक के आईबीआरडीए के ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा कंपेरेटिवली टू जो एसबीआई का है उसमें कम रहेगा, क्योंकि एसबीआई BBB रेटेड है, राइट। थोड़े रिस्की बॉन्ड्स हैं ये, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा ना वो एज कंपेयर टू दैट ऑफ आईबीआरडी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा इन बॉन्ड्स पर, ठीक। फिर यहीं पे याद रखेंगे एसबीआई का जो सिंडिकेटेड सोशल लोन है वो $1 बिलियन का रहेगा, और उसी में से ये $250 मिलियन यहाँ पे रेज किए गए थे एज अ पार्ट ऑफ द सिंडिकेटेड सोशल लोन, ठीक है। मार्क करके चलेंगे, एसबीआई ने $250 मिलियन रेज किए थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2028 एंड ये BBB रेटेड रहेंगे बाय एसएनपी। एसबीआई की बात करें तो दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन रहेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1955 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया विल बी ग्रोइंग बाय हाउ मच % इन फिस्कल ईयर 24 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बाय एनएसओ। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इनके द्वारा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिपोर्ट रिलीज की गई, करेक्ट। एंड यहाँ पे बताया गया कि इंडिया फिस्कल ईयर 2024 में कितने से ग्रो करेगा? 7.3% से ग्रो करेगा। और याद हो तो लास्ट ईयर फिस्कल ईयर 23 में इंडिया 7.2% से यहाँ पर ग्रो करा था, ठीक। मार्क करके चलेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है 7.3%, करेक्ट। नेक्स्ट VITOL, ये याद रखेंगे विटॉल, ये कहाँ की कंपनी है? ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई डील साइन की इंडिया में, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी इंडिया में 2026 से ये सप्लाई शुरू हो जाएगी, राइट। 10 साल तक ये सप्लाई करेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस को, एंड 1 मिलियन मैट्रिक टन हर साल यहाँ पर सप्लाई की जाएगी इंडिया को। पूछा जा रहा है विटॉल ने इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर ये डील साइन की है? तो वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के साथ यहाँ पर ये डील साइन की गई है, करेक्ट। एंड ये 10 साल की डील रहेगी, करेक्ट। 1 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पे हर साल LNG सप्लाई की जाएगी और 2026 से ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। गेल की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संदीप कुमार गुप्ता। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। 1984 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of NARCL? तो याद रखेंगे अभी चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कैनरा बैंक P संतोष, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NARCL। 3 साल के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है, करेक्ट। 5 जनवरी से इनकी पोजीशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। ये किनको सक्सीड करेंगे? नटराजन सुंदर को सक्सीड करेंगे,
नटराजन सुंदर ये रिजाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से, करेक्ट। एंड पी संतोष यहाँ के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं NARCL के। NARCL की बात करूं, चेयरमैन कौन है? दिवाकर गुप्ता। एमडी एंड सीईओ कौन हो गए? पी संतोष। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो याद रखेंगे रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी इन्होंने चार्ज लिया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। ये सक्सीड करेंगे कांडीकुप्पा श्रीकांत को। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं हमारे रविंद्र कुमार त्यागी, ये सक्सीड करेंगे कांडीकुप्पा श्रीकांत को। ठीक है, चलिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, और यहाँ पे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NIIFL, जो कि है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। फरवरी 2024 से इनकी पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी एज MD एंड CEO। कौन है? संजीव अग्रवाल की, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे? राजीव धर को। ये सक्सीड करेंगे राजीव धर को टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ IIFL। ठीक है, कहां पर हेडक्वार्टर आएगा IIFL का, NIIFL का? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा और इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी पर। सेबी ने अपॉइंट किया जी राम मोहन राव को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स। तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? जी राम मोहन राव। 3 साल के लिए यहां पे इनको अपॉइंट किया गया है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? दूसरा, एज ऑफ 23 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर? तीसरा, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की रिपोर्ट टाइटल सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर? चौथा, WHO हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच कंडीशन एज ए ग्रेव ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? और पांचवा, जोरावर लाइट टैंक, ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन DRDO एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं और अच्छे से मैं आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकूं, राइट, एंड बेटर कंटेंट डिलीवरी कर सकूं ताकि आपको भी पढ़ने में भी मजा आए, राइट। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.